Hello students, today in this video we will revise our fourth chapter, which is carbon and its compounds. In this chapter we will discuss following questions, and these questions summarize the whole concepts behind the carbon and its compounds. Got it? So we will I will try to summarize whole chapter according to these questions. Got it? And lot of important concepts have been related by CBSE, and in this video the main board concepts are given, and I will tell you the topics which will come in your board exams. So let's start. Our first question is, what is carbon and what is the nature of carbon? Means why it is called as carbon is versatile in nature. What do you mean by versatile? Okay. The second question, which is as follows: why carbon cannot gain? Okay. Carbon cannot gain electrons and lose electrons. Third question is, what is covalent bond? Got it? And fourth question is, what are allotropes? And the last question is, what are hydrocarbons? So we will discuss following questions one by one. Now coming to first question, which is what is carbon and the versatile nature of carbon. We will discuss both questions. Got it? So let's go. Yes, our first question is, what is carbon? Dear students, carbon is a non-metal, okay, having symbol as C, okay, having symbol capital C, and this carbon is found in group number 14 in the periodic table. So what is carbon? Carbon is a non-metal which is present abundantly in the earth, okay, and it has symbol C, and it is found in group 14 in the periodic table, and it has atomic number 6. Got it? And its valency is, if we know that atomic number is 6, then the electronic configuration will be 2, 4, and in the last shell of this carbon we have 4 valence electrons. Therefore its valency is 4. Got it? And due to valency of 4, it is called as tetravalent. So what we have concluded about carbon, let's summarize. Carbon is a non-metal, ओके, और जो हर जगह प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हम ये कहें हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होता है, तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो आप हर जगह उसको पाओगे. गॉट इट? एंड कार्बन हैज सिंबल सी. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इस वजह से इसकी वैलेंसी 4 होती है, और हम इस वजह से इसको टेट्रावैलेंट भी कहते हैं. नेक्स्ट इज, carbon is found in group 14. Got it? This is all about the carbon. What is carbon? ठीक है, अब हम देखते हैं versatile nature of carbon. कार्बन क्यों हर जगह प्रेजेंट होता है? Got it? Next topic is versatile nature of carbon.
ओके, वर्सेटाइल नेचर, वर्सेटाइल का मतलब होता है ऑलराउंडर, वो हर जगह क्यों प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ऐसा क्या है कार्बन के अंदर जो इतना वो फेमस है, इतना अच्छा एलिमेंट कहा जाता है, हर जगह प्रेजेंट होता है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में देखें, हम पेट्रोल के उसमें देखें, प्रोटीन में देखें, प्रोटीन में भी कार्बन प्रेजेंट होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से कार्बन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है जिसकी वजह से कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट बनता है। तो क्या क्या चीजें उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो हमने देखा कि जो कार्बन होता है उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है वैलेंसी। गॉट इट। तो हमने क्या देखी कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो आपकी 4 होती है। गॉट इट। और 4 क्यों होती है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 2,4 हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा शेयर किए जाते हैं दूसरों के साथ, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है तो इसका मतलब ये अपने साथ 4 एलिमेंट्स को जोड़ सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इसी वजह से इसको हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। और जब ये दूसरों के 4 बॉन्ड बना सकता है तो डिफरेंट 4 एलिमेंट्स को अपने साथ जोड़ भी सकता है, ठीक है। तो जिस एलिमेंट की जरूरत है वो अपने साथ जोड़ सकता है। गॉट इट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इसको वर्सेटाइल बनाती है वो है टेट्रावैलेंसी। ओके। क्योंकि वैलेंसी का मतलब ये नहीं होता है, ये ही नहीं होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज, गेन और शेयर। वैलेंसी का मतलब भी ये भी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। मतलब अगर किसी की वैलेंसी 4 है तो वो 4 एलिमेंट्स को जोड़ सकता है अपने साथ, ठीक है। तो इसकी 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बना सकता है, ये 4 डिफरेंट एलिमेंट्स को अपने साथ जोड़ सकता है। तो सबसे फेवरेबल प्रॉपर्टी जो है इसकी, जो इसको वर्सेटाइल बनाती है, वो क्या है, टेट्रावैलेंसी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी जो इसको वर्सेटाइल बनाती है, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, गॉट इट। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग क्या होती है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने साथ और कार्बन एटम्स को ऐड करके बहुत लंबी चेन बना सकता है। गॉट इट। या हम ये कहें अपने साथ बहुत सारे कार्बन को जोड़ सकता है और क्रॉस लिंक चेन भी बना सकता है, लीनियर चेन भी बना सकता है। तो कार्बन अपने जैसे कार्बन एटम्स को जोड़ के लंबी चेन फॉर्म कर सकता है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन। ये 2 प्रॉपर्टीज इसको वर्सेटाइल बनाती हैं। गॉट इट। बहुत अच्छा एलिमेंट इसको बनाती हैं। और हम ये भी कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो कार्बन होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है, साइज इज वेरी स्मॉल। तो जितनी भी ये लॉन्ग चेन बनती है, ओके, ये बहुत स्टेबल होती है क्योंकि ये ना स्मॉल साइज होता है, क्लोज पैक करके रखता है चीजों को, ठीक है। तो इस वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है ये, है ना, स्टेबल बनाता है। तो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज ये स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। गॉट इट। तो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज
इट फॉर्म्स स्टेबल कंपाउंड्स। तो इसका मतलब हमारे पास 3 बेसिक प्रॉपर्टीज इसकी हो गई। सबसे पहली टेट्रावेलेंसी, दूसरी कैटिनेशन, तीसरी स्मॉल साइज। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है दिमाग में और बोर्ड में भी पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है वो कि ग्रुप 14 में और भी एलिमेंट्स हैं, तो वो क्यों इतने अच्छे माने नहीं जाते? क्योंकि ग्रुप 14 में तो ग्रुप 14 में उन्हीं एलिमेंट्स को रखा गया है जो कार्बन की प्रॉपर्टी के साथ मैच करते हैं। तो कार्बन क्यों हर जगह प्रेजेंट होता है और एलिमेंट्स को क्यों नहीं प्रेजेंट होता, और एलिमेंट्स वर्सेटाइल क्यों नहीं कहलाते? तो उसका रीजन ये है कि डियर स्टूडेंट्स, और एलिमेंट्स लॉन्ग चेन बनाते तो हैं, लेकिन उनका जो साइज होता है वो इतना छोटा नहीं होता है। साइज बड़ा होने की वजह से स्टेबिलिटी उनकी कम होती है। तो इस वजह से कार्बन मेक स्टेबल कंपाउंड्स एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 14। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज कार्बन एंड व्हाट इज इट्स वर्सेटाइल नेचर। गॉट इट? अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बॉन्डिंग इन कार्बन। अच्छा, बॉन्डिंग इन कार्बन में हम ये देखते हैं इसका क्या मतलब है कि कार्बन, अभी हमने पढ़ा कि कार्बन दूसरे एलिमेंट्स को अपने साथ जोड़ सकता है और कार्बन अपने साथ दूसरे कार्बन एटम्स को जोड़ के लंबी चेन फॉर्म कर सकता है। तो कार्बन का ये जो चेन बनाना है, कार्बन का दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो अटैच होना है, एडिशन होना है, तो किस टाइप का एडिशन होता है, इसमें किस टाइप की बॉन्डिंग होती है? ठीक है, तो सबसे पहले हम बॉन्डिंग जानने के लिए देखते हैं ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। गॉट इट? तो इसको जानने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज बॉन्ड। बॉन्ड का क्या मतलब है? बॉन्ड इज व्हाट? बॉन्ड इज नथिंग, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो दो एलिमेंट्स के बीच में होता है। ओके, जैसे हम ये कहते हैं कि दो फ्रेंड्स हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो व्हाट इज बॉन्डिंग? बॉन्डिंग इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है एलिमेंट्स के बीच में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, जिसकी वजह से वो आपस में अटैच रहते हैं, और अटैच रहते हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इनके बीच में बॉन्डिंग है। इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग। अभी किस टाइप की बॉन्डिंग होती है एक बार हम देखते हैं। ठीक है, देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,4। लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा है कि लास्ट शेल में हमेशा स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को लूज कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने से इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो स्टेबल है, एक ही शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, या ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले परमानेंटली। ठीक है, अगर ये परमानेंटली लूज करेगा तो इस पे कितने लूज करेगा? 4, तो इस पे 4 पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर ये गेन करेगा तो 4 नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन दोनों ही केसेस इसमें नहीं होते। इसका मतलब कार्बन डज नॉट गेन इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पीछे रीजन क्या है? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करता, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करता। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखना कि इस नेचर में ना एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, तो एक एलिमेंट या हम ये कहें एक एटम फ्री कब पाया जाएगा? फ्री कब होगा वो?
जब उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे, वो किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर किसी एटम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो उन एलिमेंट को ढूंढेगा जिनके पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स हो, उससे वो कंबाइन कर सके। और हर एटम ना नेचर में स्टेबल होना चाहता है। एंड व्हाट इज स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना चाहता है, क्योंकि ना इस नेचर में जो नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पूरे होते हैं, तो वो स्टेबल होती हैं, वो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हर एलिमेंट अपने आप को नोबल गैस कन्फ्यूग्रेशन की तरह करना चाहता है कि मैं नोबल गैस को कन्फ्यूग्रेशन की तरह हो जाए, मेरा कन्फ्यूग्रेशन भी। तो यहाँ पर कार्बन जो है उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अनस्टेबल है। तो ये भी सर्च कर रहा है कि कोई मुझे दूसरा एलिमेंट मिल जाए और मेरे 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पॉसिबिलिटी कि ये कह रहा है कि या तो मैं किसी से उधार ले लूं परमानेंटली तो मेरे पे 4 नेगेटिव चार्ज आ जाए, या मैं ये 4 इलेक्ट्रॉन ही किसी को दे दूं। ये दोनों केसेस ही इसमें नहीं होते हैं। ये क्या करता है, ऐसे एलिमेंट ढूंढता है जिनसे ये शेयर कर सके। शेयरिंग में क्या होता है, परमानेंटली लूजिंग गेनिंग नहीं होती है, समझौता होता है, इसमें चार्ज नहीं आता इसमें कोई भी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं शेयरिंग। तो कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे जुड़ता है? बाय शेयरिंग। ओके, अब ठीक है, हमने ये तो बता दिया कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, तो उस पे ना ही नेगेटिव चार्ज आता है ना ही पॉजिटिव चार्ज आता है, बिकॉज इट इज नॉट गेनिंग परमानेंटली, इट इज नॉट लूजिंग परमानेंटली। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये शेयर ही क्यों करता है? ठीक है, क्यों करता है? इसके पीछे 2 रीजंस हैं। एक तो इसका न्यूक्लियस इतना छोटा होता है, इट्स न्यूक्लियस इज सो स्मॉल टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। इसका न्यूक्लियस इतना छोटा होता है कि एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन नहीं कर सकता, इट कैन नॉट होल्ड। दूसरा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये लूज कर सके। तो भाई जब इसका न्यूक्लियस छोटा है तो ये गेन भी नहीं कर पा रहा है, ओके। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, तो इसके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची, विच इज शेयरिंग। तो ये कार्बन एक नॉन मेटल दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है शेयरिंग के द्वारा, गॉट इट। तो इट ऑलवेज शेयर्स इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, टू अदर एलिमेंट। एंड अब हमें ये समझ में आ गया कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं आता। कार्बन डज नॉट हैव एनी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। शेयरिंग के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। अब ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, इसकी वजह से ये दो एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं और इनके बीच क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, गॉट इट। ड्यू टू शेयरिंग इन 2 एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बन जाता है, एंड शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। सो बॉन्डिंग इन कार्बन, कैसा नेचर होता है बॉन्डिंग इन कार्बन? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है दूसरे एलिमेंट के साथ? कोवेलेंट बॉन्ड। और जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ये जो बॉन्ड होता है ना, ये हमेशा एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सिंगल लाइन का मतलब होता है कि 2 एलिमेंट्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, ओके। वी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स in the form of bond, in the form of single line. If 2 electrons are shared between 2 atoms, then they are shown by single line, got it? तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, एंड थर्ड वन इज ट्रिपल बॉन्ड, ओके। सिंगल बॉन्ड,
is represented by single line, double bond is shown by double line, triple bond is shown by 3 single lines, and one single line shows sharing of 2 electrons, 2 single lines shows sharing of 4 electrons, 3 single lines shows sharing of 6 electrons. ठीक है, तो जब कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है, इससे ये बात क्लियर है कि कार्बन जब दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है. गॉट इट? तो इस नेचर में जब भी कोई एलिमेंट शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड बनाएगा तो वो कैसा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा. और जनरली कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स के बीच में प्रेजेंट होता है. whenever two non-metals combine to each other, they always share their electrons and they form covalent bonds. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि अगर कोई एटम अनस्टेबल है तभी तो वो शेयर करेगा, अगर वो स्टेबल है तो वो तो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होगा, उसे किसी के साथ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है. अब हम एक बार ये समझते हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं. कौन से एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कौन से एलिमेंट के बीच में डबल बॉन्ड और कौन से के ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड का मतलब है सिंगल लाइन. ओके, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी. ठीक है, जब 2 नॉन मेटल्स आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और दोनों एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा. तो देखो इसका एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तुम्हें नीचे ही दिख रहा है, H के नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम है. डियर स्टूडेंट देखो हाइड्रोजन नेचर में ऐसे पड़ा हुआ है. अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोजन का तो एक ही शेल बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन है और एक शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना. इसका मतलब इट इज अनस्टेबल, इसको 2 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे करने हैं, तो इसका मतलब ये किसी ना किसी के साथ जुड़ेगा. और ये नॉन मेटल है तो जनरली ये क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन एटम को सर्च करता है, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है. गॉट इट? हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को डॉट फॉर्म में बना लिया है. ठीक है, हम शेयरिंग दिखाएंगे इस वजह से. तो ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉन्स को डॉट स्ट्रक्चर में दिखा रहे हैं हम यहाँ पे. तो ये क्या करते हैं, दोनों नॉन मेटल है तो ये शेयर कर लेते हैं. अब देखो इस एटम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो भाई इसका काम चल गया, स्टेबल हो गया. ये एटम कह रहा है मेरे को भी 2 एटम चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, तो इट ऑल्सो शेयर्स. तो बीच में कितने की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की. तो हम क्या दिखाएंगे इसको, H सिंगल बॉन्ड H, एंड क्या बन गए आपस में, H2 बन गए. दोनों के बीच बॉन्डिंग हो गई, बॉन्डिंग होके क्या बन गया, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया. ठीक है, तो हाइड्रोजन का हमेशा याद रखना, जो हाइड्रोजन है वो सिंगल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करती क्योंकि ये अनस्टेबल होती है, हमेशा किस रूप में प्रेजेंट होती है, मॉलिक्यूलर रूप में. ठीक है, तो एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन कर जाता है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाता है. और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. गॉट इट? नाउ सेकंड हम देखते हैं एग्जांपल डबल बॉन्ड का. ओके, डबल बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 सिंगल लाइन से. और इसका एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल. ठीक है, तो देखो हम जब ये फॉर्मेशन दिखाते हैं ना, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे बना, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मतलब है 2 ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़े होंगे तभी तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना होगा. और मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, जरूर आपस में इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है इनमें. तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मेशन दिखाने के लिए इन दोनों एटम को अलग अलग लिख लेते हैं. ओके, और इनके लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं.
और लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको डॉट के रूप में ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2,6, इसका भी और इसका भी। और मैंने तुम्हें बताया जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको हम डॉट के रूप में ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 6। इस एटम के पास भी 6 बचते हैं। तो देखो 6 है इसके लास्ट शेल में, इसको कितने की जरूरत है? 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की, और ये दोनों नॉन मेटल भी हैं, तो ये क्या करता है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेता है। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इसके और 2 इसके, 8 हो गए। ये ऑक्सीजन एटम कहता है अब मुझे जरूरत है, मैंने तो परमानेंटली थोड़ी दिए थे, तो ये भी शेयर कर लेता है। तो देखो यहाँ पर दोनों के 8 कंप्लीट हो गए, तो बीच में कितने की शेयरिंग हो रही है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एक ऑक्सीजन एटम और दूसरे ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। गॉट इट? तो ये तो तुम ना देख के भी पहचान सकते हो कि जिसके लास्ट शेल में 2,6 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, वो शेयरिंग करता है। ठीक है, ओके। तो डबल बॉन्ड बनता है आपका। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे बना? बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई तो फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। नेक्स्ट है आपका ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ट्रिपल बॉन्ड, 3 सिंगल लाइंस। एग्जाम्पल इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, तो देखो एक एन लिखा हमने, एक एन लिखा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 2,5 हो गया। तो इसका मतलब लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, तो हम इनको डॉट के रूप में लिख लेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स को। इस वाले एटम के ऊपर, इस वाले एटम्स के ऊपर भी 5 लिख लिया। अब लास्ट शेल में 5 है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो इट विल शेयर, 8 हो गए इसके, इट विल ऑल्सो शेयर। तो बीच में कितने की शेयरिंग हो रही है? 6 इलेक्ट्रॉन्स की, तो फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो तुम पता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को एन ट्रिपल बॉन्ड एन भी लिख सकते हो। व्हाट इट? एन क्या बन गया? नाइट्रोजन। तो दिस इज ऑल अबाउट दी कोवेलेंट बॉन्ड। सो कार्बन एटम्स जो होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है? कार्बन जब दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो CH4, ठीक है, तो एक कार्बन है और इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो एक कार्बन लिख लो और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन लिख लो। ठीक है, अब हर एलिमेंट के ऊपर उनके इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करो। हाइड्रोजन के ऊपर एक होता है, एक होता है, एक होता है। कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कोशिश करो कि हर एलिमेंट के आगे इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करो तुम। तो देखो हाइड्रोजन ने 2 कर लिए अपने पूरे, इसने 2 कर लिए, इसने 2 कर लिए, इसने 2 कर लिए। ओके, हाइड्रोजन के एटम तो स्टेबल हो गए। अब कार्बन के अपने 4 तो थे ही, अब ये हाइड्रोजन से इनके भी 4 शेयर कर लेगा। तो देखो बीच में कितने की शेयरिंग हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? C सिंगल बॉन्ड H, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ गए, तो इट इज कॉल्ड CH4। CH4 इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्योंकि हमने इकट्ठे रूप में लिख दिया। इट इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मूला क्योंकि हम यहाँ पर बॉन्ड्स दिखा रहे हैं। इट इज कॉल्ड डॉट स्ट्रक्चर, it is called dot structure, it is called bond structure, it is called molecular formula. Okay, so this is all about the covalent bonds. Now we will study about allotropes of carbon. Allotropes of क्या होता है कि जो कार्बन है, ठीक है, वो अपने वेरियस फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे एक कार्बन एक जगह प्रेजेंट है, ठीक है, दूसरी जगह कार्बन ही प्रेजेंट है, लेकिन वो
शाइन कर रहा है, तीसरी जगह कार्बन प्रेजेंट है लेकिन वो शाइन नहीं कर रहा, उसमें बेसिकली कार्बन तो है लेकिन वो शाइन नहीं कर रहा है। गॉट इट? तो दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी, कार्बन कार्बन है, बट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। कोई चमक रहा है, कोई नहीं चमक रहा, तो वो फॉर्म्स कहलाती हैं, वो डिफरेंट फॉर्म्स कहलाती हैं एलोट्रॉप्स। गॉट इट? तो कार्बन अपने एलोट्रॉप्स में पाया जाता है। व्हाट आर एलोट्रॉप्स? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट विच आर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कार्बन के हमारे पास दो टाइप के एलोट्रॉप होते हैं। एक तो होता है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप, ठीक है, दूसरा होता है एमोर्फस एलोट्रॉप्स। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स कौन से होते हैं? क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स वो एलोट्रॉप्स होते हैं जिनमें एटम्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, ठीक है, एक परफेक्ट अरेंजमेंट होता है एटम्स का, तो वो एलोट्रॉप्स कहलाते हैं इसके क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। तो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं? डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट एंड फलरीन, ठीक है, ओके। तो हमारे पास डायमंड के टू एलोट्रॉप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स एंड एमोर्फस एलोट्रॉप्स। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स वो एलोट्रॉप्स होते हैं जिनमें एटम्स रेगुलर अरेंज होते हैं, जैसे ए बी सी, फिर दोबारा ए बी सी, ऐसे रेगुलर अरेंजमेंट, एक परफेक्ट अरेंजमेंट बनता है। एमोर्फस एलोट्रॉप्स वो होते हैं जिनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, ओके, और जिनमें शाइनिंग भी नहीं होती है। तो एमोर्फस का एग्जांपल है आपका चारकोल, ओके, गैस कार्बन, कोल, ओके, दीज आर कॉल्ड एमोर्फस एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स एमोर्फस कौन से होते हैं? जिनमें उनका परफेक्ट अरेंजमेंट एटम्स का नहीं होता है। तो हमारे सिलेबस में ये तीन एलोट्रॉप्स हैं, व्हाट इज? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फलरीन। एक एक करके एक बार हम इनको देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले डायमंड। डायमंड जो होता है हार्डेस्ट मटेरियल है इस अर्थ में। डायमंड हार्डेस्ट नॉन मेटल है, ठीक है, और हार्डेस्ट नॉन मेटल्स जनरली तुमने देखा होगा कि नॉन मेटल्स इतने हार्ड और सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। कार्बन एक नॉन मेटल है और कार्बन का ही एलोट्रॉप डायमंड है जो कि हार्डेस्ट है ना। तो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्लोज पैक्ड होता है, इसमें सारे एटम्स क्लोज पैक्ड होते हैं और इसका अरेंजमेंट जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, गॉट इट? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट होता है, और इसमें कार्बन एटम्स इस तरीके से क्लोज पैक्ड होते हैं कि इसमें फ्री नहीं हो पाते, फ्री आयन जनरेट नहीं हो पाता है। इस वजह से ये हार्ड होता है और ये शाइन करता है। शाइन क्यों करता है? क्योंकि इसकी जो एजेस होती हैं वो बहुत शार्प होती हैं और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसमें डायमंड में, तो ये शाइन्स। नॉन मेटल है, नॉन मेटल जनरली लस्ट्रस नहीं होते हैं, है ना, लेकिन ये कार्बन जो है, कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं जनरली एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं। डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन से मिलके बना है एक नॉन मेटल से, बट इट शाइन्स, ठीक है, हार्ड होता है। तो कार्बन का मेन फीचर क्या है, सॉरी डायमंड का मेन फीचर क्या है कि इट हैज क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसमें फ्री आयंस नहीं जनरेट होते हैं, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट शाइन्स, ओके, ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड इट हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट जो होता है वो आपका लूजली पैक्ड अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट में हेक्सागोनल लेयर्स आपस में जुड़ी होती हैं और ना लूजली पैक्ड होती हैं हेक्सागोनल लेयर्स, ठीक है। तो आपस में ना स्लिप करती रहती हैं वो, तो थोड़ी सी भी हम इनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसमें फ्री आयंस जनरेट हो जाते हैं। स्लिपरी होती हैं ये जो ग्रेफाइट की जो हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं वो आपस में स्लाइड करती रहती है, तो स्लिपरी होती है ग्रेफाइट जनरली, और इसमें फ्री आयंस जनरेट हो जाते हैं। तो देखो ग्रेफाइट भी अगेन एक्सेप्शनल केस में आ गया नॉन मेटल के। जनरली नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0 होती है, लेकिन ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू जनरेशन ऑफ फ्री आयंस। और ग्रेफाइट जो होती है स्लिपरी होती है, इसीलिए इसको लुब्रिकेंट की तरह भी हम काम में लाते हैं। तो ग्रेफाइट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट ड्यू टू इट्स स्लिपरी नेचर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज फलरीन। फलरीन जो होता है वो आपका कार्बन के 60 एटम्स का अरेंजमेंट जनरली फलरीन होता है, और इसको अगर हम कार्बन के 60 एटम्स को एक बॉल के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो दिस कार्बन 60 इज कॉल्ड बकी बॉल्स, ठीक है। जिसमें याद रखना 20 तो पेंटागन्स होते हैं एंड 12 पेंटागन्स होते हैं और 20 हेक्सागन्स होते हैं, ठीक है। तो जो फलरीन्स होती हैं इनको हम बकमिंस्टर फलरीन भी कहते हैं, क्योंकि एक आर्किटेक्ट थे उनका नाम था बकमिंस्टर, गॉट इट। तो उन्होंने ना एक डोम बनाया था और उस डोम का स्ट्रक्चर बिल्कुल इन फलरीन से मैच करता है, ठीक है। तो इस वजह से इनको फलरीन का नाम रखा गया बकमिंस्टर फलरीन। फलरीन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फलरीन का स्ट्रक्चर होता है वो जो आर्किटेक्ट ने डोम बनाया था उससे मैच करता है बेसिकली, तो इसीलिए इनका नाम रखा गया बकमिंस्टर फलरीन्स, ओके। और ये रॉड के रूप में भी मिल सकती हैं फलरीन्स, हमें नैनो ट्यूब्स के रूप में भी मिल सकती हैं, छोटे छोटे जो नैनो पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, और ये आपके बकी बॉल्स के फॉर्म में भी हमें मिल सकती है। दिस इज कॉल्ड बकमिंस्टर फलरीन, ओके। तो these all are the 3 allotropes of carbon which are very important. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स? ओके, तो जनरली हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, नाम में ही समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो जब हाइड्रोजन और कार्बन से जुड़े कंपाउंड्स, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो वो कंपाउंड्स कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं आपके जो नेचुरल पाए जाते हैं, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। तो जो कार्बन है वो आपका नेचुरल ही प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, ठीक है, गॉट इट। लेकिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनऑर्गेनिक मटेरियल से इस कार्बन कंपाउंड को बनाया था, वो था यूरिया बना था, ठीक है, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक से बना था। जनरली अगर हम कार्बन को एक्सट्रैक्ट करना चाहें ना तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लो, उनमें से कार्बन को निकाल सकते हैं, हम ऑर्गेनिक से मिल रहा है हमें, ऑर्गेनिक है ये। लेकिन जो वोलर थे, वोलर सिंथेसिस में
उन्होंने जो कार्बन बनाया था, यूरिया बनाया था, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया था, थायोसाइनेट से. गॉट इट. तो दिस इज यूरिया वाज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज मेड बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड. गॉट इट. तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जब whenever carbon joins with hydrogen, then these type of compounds are called hydrocarbons. जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एंड जब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. गॉट इट. सो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर. एंड जो CBSE ने जितना सिलेबस बताया है इसमें, this is all about the according to CBSE syllabus, and if you have any problem then you can ask me. Got it? Thank you.